Hi friends, welcome back. So we are right now getting into the third video series on this SIP. So as an investor, we have looked at the timing in the market is not as important as the time spent in the market. We can definitely create a great wealth by starting with just about 5,000 rupees in the market over a period of time. We have also looked at the mechanics of SIP, about how SIP functions and why volatility in the market and uncertainty about the future return is overcome in case we are looking at an SIP way of investments rather than lump sum. And we have also looked at situations where lump sum kind of investment works well for investors compared to SIPs. Now, the question is, all that is clear. तो मेरे को ये समझ में आया है. अभी मेरे को ये समझना है कि SIP शुरू तो करना है, बट कौन से फंड से शुरू करना है? विच फंड्स डू आई बिगिन विद? ठीक है, तो उसके लिए देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड लिटिल बेटर फॉर आवरसेल्व्स. एक बार ये समझ में आ जाएगा ना, while it might look little technical, blah blah, all of that, but in the real life, once you get used to it little, things will be falling in place and it's much simpler than what we think it is supposed to be. Okay, so we have to now start. Okay, now start. Now the question is, where do we start? Which one? Where do we start? Okay, where do we start? Or which fund do I select? Which fund do I select? Okay, SIPs तुम बॉन्ड में कर सकते हो, बॉन्ड फंड्स में कर सकते हो, बॉन्ड फंड्स में कर सकते हो, गिल्ड्स में कर सकते हो, इक्विटी में कर सकते हो, लार्ज कैप में कर सकते हो, मिड कैप में कर सकते हो, थीमेटिक में कर सकते हो, हर एक फंड में कर सकते हो. बट कौन सा फंड में करूं? Which fund is suitable for me? Okay, so let us begin. Okay, everything depends upon where you want to reach, and how soon you want to reach. Okay, where you want to reach and how soon where you want. देखो, everything depends upon a proper plan. Investment is a journey, and a journey is well accomplished when it is planned well. तुम अगर घर से निकलते हो, ऑफिस आना है, अगर तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है कि क्या करूं, घर से निकल लूं, ऑटो में बैठूं, वहां से ट्रेन में जाओ, टिकट लूं, सो यू एग्जैक्टली नो ए प्लान हाउ टू ट्रैवल दैट पाथ, दैट जर्नी. सेम थिंग अप्लाइज हियर. हमने देखा कि 5,000 रुपए महीने से शुरू करके तुम 1 करोड़ पहुंच सकते हो. अगर मैं पूरा जिंदगी भर सोचते रहूं कि 1 करोड़ कैसे पहुंचूं, वो नहीं पहुंचो, बिकॉज इट इज प्लान्ड वेल. यू आर प्लान्ड a very systematic manner to reach that 1 crore journey. Same thing happens over here. Now, the question is, let me assume, simple सी बात है, let me assume मेरे को 10 साल में 10 लाख पहुंचना है. 10 साल में 10 लाख पे पहुंचना है. Okay? There could be multiple, so either all right, let me look at it this way. Let me see, मेरे को पहुंचना है 10 लाख पे. I have to reach 10 lakhs. Okay, this is my goal. ये गोल किसके लिए है? I'm not getting into that. ये मेरा शादी के लिए है, पढ़ाई के लिए है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है. I'm not getting that. मेरा गोल है 10 लाख पहुंचना है. ठीक है, ये मैं कैसे पहुंचू? I can reach it by investing time. Okay, or I can reach here by investing into risk. Okay, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा सब. इधर मैं समय में इन्वेस्ट करूं, ये मैं रिस्क में इन्वेस्ट करूं. करेक्ट? द मोर टाइम यू स्पेंड, रिस्क बिकम्स लेस. समय जितना दोगे, रिस्क रिक्वायरमेंट उतनी कम होते, बिकॉज मेरे को यहां पे पहुंचना है. सो आई नीड टू रिटर्न is directly, there is a lot of function with risk. Risk and return go hand in hand. जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न की उम्मीद भी आप करोगे. अभी समझो मेरे को 10 लाख पहुंचना. अभी आप लोगों को लग रहा है थोड़ा गोल गोल घूम रहा है, बट लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल सिंपलर. ओके, मेरे को 10 लाख पहुंचना है. जैसे आप घर से ऑफिस जा रहे हो, तुम पैदल भी आ सकते हो. सपोज यू वांट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. If you go walking, you will take 1 hour. If you take a bicycle, you will take, let's say, 50 minutes. Okay? If you start, let's say, running,
you will take 40 minutes. If you take a bicycle, you will take 30 minutes. If you take a car, you will take 20 minutes. And if you take a jet plane, maybe you will take 5 minutes. Correct? So there is a way to reach from A to B. There are multiple ways. तुम ये भी कर सकते हो, 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 ये भी कर सकते हो. Same thing applies to investments. In order for me to move from, let us say, 1 lakh to 10 lakhs, I can invest in a bond fund. I can invest in a gilt fund. I can invest in a Nifty. Okay. I can invest in a large cap. I can invest in a small cap. I can invest in a micro cap or maybe a focus fund. I can invest to blah, 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 blah. Many ways. But the thing is this, यहाँ पर जैसे हर एक चीज का characteristics are different. Okay. Same, the characteristics of these investments are also different. If you want to move from 1 lakh to 10 lakhs, if you use the bond fund, you will take lot of time. You have to invest more time. But the risk is less, significantly less. You can also use it through a bank FD. 1 लाख का 10 लाख बैंक FD पे भी रखोगे तो लंबे पीरियड के रखोगे तो वो भी हो जाएगा. You have to give significantly more time. If you invest more time, the requirement for you to take risk gets lower. देखो तुम कितना जल्दी पहुंचना चाहते हो डिपेंड्स तुम्हारे पास रिस्क एबिलिटी, एब्जॉर्बिंग एबिलिटी कितना है. तुम कहोगे जल्दी एक जेट प्लेन बाजार से ये करना है, रेंट पे लेना है, जल्दी आना है, 5 मिनट में पहुंच जाओगे. तुमको घर में ब्रेड लेना है, तुम खुद जाके पैदल जाके दुकान से ब्रेड खरीद के ला सकते हो. यू विल टेक हाफ एन आवर, और यू कैन कॉल अप, or you can Blinkit. You can do multiple ways. Depends how much of money you want to invest into that and what is the risk you want to take. What is the characteristic of that? Same thing is true. अगर गिल्ट फंड में करोगे तो समय थोड़ा कम, निफ्टी में और थोड़ा कम, इसमें और थोड़ा कम, इसमें और थोड़ा कम, इसमें और थोड़ा कम. बट समय कम, बिकॉज हमने क्या देखा, 3 चीज है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम. करेक्ट. So these are the 3 things that will deliver the return. अगर तुम समय कम देना चाहते हो, अगर तुम ये कम देना चाहते हो, तो इसका ये तो तुम्हारे पास फिक्स्ड है. करेक्ट. ये तो तुम्हारे पास फिक्स्ड है बिकॉज 1 लाख रुपए है, तुमको पहुंचना है 10 लाख, समय कम देना है, तो रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाएगी. रिटर्न का एक्सपेक्टेशन, रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क. समझ में आया? फिर से समझाता हूं. आपको पहुंचना है 10 लाख रुपए गोल पे. आपके पास फिलहाल पैसा है 1 लाख रुपए. आपके पास पैसा है 1 लाख. आपको पहुंचना है 10 लाख. ओके. आपका SIP का रास्ता आप फॉलो करना चाहते हो. SIP आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट होता है, वो भी एक SIP है. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहो, वो भी एक SIP, रिकरिंग डिपॉजिट. बैंक पे FD कर सकते हो, बॉन्ड फंड में कर सकते हो, गिल्ड फंड में कर सकते हो, निफ्टी इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप्स, फोकस फंड, सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स में कर सकते हो. एंड डिपेंड करता है कौन सा आप चुनते हो. द टाइम टेकन बाय यू टू रीच द 10 लाख रुपीज विल कीप मूविंग लोअर एंड लोअर. बैंक FD में करोगे, RD में करोगे, आपको लंबा समय के लिए करना पड़ेगा. फिर बैंक FD, बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड, धीरे धीरे समय का रिक्वायरमेंट कम होता रहेगा. सो ये 3 चीज है हमने बोला. प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. अगर टाइम रिक्वायरमेंट आपका कम होता रहेगा, प्रिंसिपल तो आपके पास उतना ही पैसा है 1 लाख रुपए, आप SIP करोगे जितना 1 लाख रुपए का, सो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहेगी. ऑब्वियसली स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स का रिटर्न ज्यादा होता है. रिटर्न ज्यादा होता है इसका मतलब उसका रिस्क भी ज्यादा होती है इस फंड में. रिस्क क्या है? वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स. कभी वो प्लस में जाएगा, कभी नेगेटिव में जाएगा. सो द वेरिएशंस ऑफ रिटर्न्स आर सिग्निफिकेंटली मोर. जैसे ये दिखाते हैं, दिस वोलेटिलिटी, दिस कुड बी अ स्मॉल कैप, दिस कुड बी अ मिड कैप, दिस कुड बी अ लार्ज कैप, दिस इज अ बैंक FD. ओके. सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन. बट ये जो वोलेटिलिटी है, ये दिस मूवमेंट इज द रिस्क. The variation of return is the risk. Okay. Now ये रिस्क लेने का क्षमता
हर एक आदमी में अलग है, करेक्ट? बिकॉज तुम कुछ लोग भाग पाते हैं, कुछ लोग भाग नहीं पाते, कुछ लोग सामने कुछ देख के ऑब्स्टिकल्स देख के डर जाते हैं. सो एवरीबॉडीज रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इज डिफरेंट. सो विच फंड टू सिलेक्ट? ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ओके, हमको अभी समझना है कि कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करनी है. सो वी हैव टू लुक एट वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स ऑफ फंड्स. अगर मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, सो आई विल सिलेक्ट समथिंग जिसका वोलेटिलिटी कम है. ओके, पहुंच तो मैं जाऊंगा, सब लोग 10 लाख पे पहुंचेंगे, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई ज्यादा थोड़ा समय एक्स्ट्रा लेगा, पहुंच तो सब जाएंगे. जो जल्दी पहुंचेगा, याद रखना, उसने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, उसने ज्यादा रिस्क लिया. ओके, जिसने समय थोड़ा लंबा लिया, उसने रिस्क कम लिया. नाउ डिपेंड करता है आप कितना जल्दी पहुंचना चाहते हो. अगर आप मेरे को बोलो कि मुझे 10 लाख पे पहुंचना है, मुझे 10 साल में पहुंचना है, इफ दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, मेरे को इधर पहुंचना है और इतने दिन में पहुंचना है, देन आई विल नो कि बॉस मेरे को तो यही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है. और मैं बोलूंगा नहीं 10 साल नहीं, मेरे को तो 5 साल में पहुंचना है, फिर मैं बोलूंगा ए प्लस रिस्क लेना है. कोई बोलेगा मुझे 3 साल में पहुंचना है, फिर मुझे ए प्लस 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 रिस्क लेना है. गेटिंग माय पॉइंट? The faster you want to reach, the additional risk that you have to take. Okay? So जो फंड का वोलेटिलिटी ज्यादा है, उस फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप शायद जल्दी पहुंच पाओगे. ओके, ये सर्टेनिटी नहीं है कि आप पहुंचोगे ही कि पहुंचोगे, बट पहुंच पाओगे. ओके, जनरली पहुंच जाते हैं, बट इन बिटवीन वोलेटिलिटी रहेगा. ऑलराइट, क्लियर एवरीबॉडी? सो इफ यू वांट टू रीच योर गोल फास्टर, then select funds where there is higher level of volatility. Higher level of volatility is an indicator of higher level of risk, and higher the risk, there is a significant higher chance of higher returns. Great, all the very best. So hope you guys are truly going deep into this world of SIP, right? Please like us, like these videos, share these videos, comment on these videos, and subscribe to this channel. We look forward to your comments. All the very best and happy investing.